السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے بنانی تو نہیں تھی لیکن بنانی پڑ رہی ہے۔ اصل میں آپ سب کے علم میں ہے کہ پنڈی کا ایک شخص ہے حنیف قریشی، جو کہ رافضیوں کا دلال ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شدید ترین گستاخی کی۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید، عمر بن العاص، مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبٹ لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے، ان کو شیلڈ دیں گے، ہے جو لانتی سوڑی جتی نہیں نوکتے۔ بے شک بے شک۔ اور اگلے دن اس کا ایک رجوع کا کلپ سامنے آتا ہے، اور اس کی بددیانتی دیکھیں۔ اس دن جب اس کو پتہ چلا کہ اب تو میری لطف پریڈ ہوگی، تو اس نے اس دن پروگرام کی کیسٹ اور کلپس اور ویڈیوز جو لائیو تھیں ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروائیں، لیکن جنہوں نے سیو کرنی تھی انہوں نے بہت پہلے سے ہی اس کی گستاخانہ کلپ کو سیو کر لیا۔ اب یہ شخص اپنی طرف سے بہت ہی ایزی ہو گیا تھا کہ اب تو میری ویڈیو کسی کے پاس نہیں، لہٰذا مجھے رجوع کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو پتہ چلے گا، نہ کوئی آواز اٹھائے گا۔ لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ اگلے دن جب کلپ بہت وائرل ہو گیا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو الٹی گیم ڈل گئی ہے۔ اس کے بعد رجوع کا کلپ سامنے آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو رجوع کا کلپ ہے وہ فقط عوام کے لیے تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کا خلوص نیت اس میں بالکل شامل نہیں تھا۔ ایسے رجوع کا کوئی فائدہ نہیں جو کہ صرف عوام کے لیے دکھانے کے لیے ہو کہ میں عوام کی نظروں سے بچ جاؤں، تو ثابت ہوا کہ اس کا یہ رجوع نہیں مانا جاتا۔ لیکن پھر بھی ہم باقاعدہ شرعی جائزہ لیتے ہیں اس کے رجوع کا، چونکہ یہ خود کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتا ہے، جو کہ دور دور تک اس کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الٹا یہ انہی کے مسلک کو بدنام کر رہا ہے، اور انہی کا کھا پی کے، انہی کے نام کی شہرت پا کے آج اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہی دغا کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ خود کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہتا تھا، تو پھر اگر تم واقعی شمشیر اعلیٰ حضرت ہے تو پھر تیرے لیے فتویٰ بھی اعلیٰ حضرت کا ہی چلے گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے یہ فتویٰ حاضر ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مختصر مفہوم جو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جس شخص کا معلوم ہو کہ وہ ایک جرم کا عادی ہے، اور اس کی توبہ بھی سب کے سامنے وہ بار بار اپنے جرم کی توبہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ جیسے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مثال ایک چور کی ہے، چور چوری کرتا ہے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو معافیاں مانگتا ہے، وعدے کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ موقع ملتا ہے، وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے، اور پھر وہی چیزیں دہراتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ جس طرح ایک چور کے رجوع کا، یا چور کے معافی کا، یا چور کے وعدے کا اعتماد نہیں کر سکتے، اسی طرح ایک شخص جس کے جرم کا بار بار پتہ ہو اور وہ بار بار ایک ہی چیز کرتا ہو اور کثرت سے کرتا آ رہا ہو، اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ ہے فتویٰ اعلیٰ حضرت۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار کب کی، اور خود ہی ساتھ گنوا دیتا ہے کہ 3 بار ہی تو کیا گستاخی، بار بار کب کی۔ کہ تو جی روز روز کرتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون سی روز روز؟ 15 سال پہلے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا، اس کے بعد 10 سال پہلے ایک لفظ میرے گمان میں نہیں تھا۔ کتنا بولو؟ 10 سال پہلے۔ پھر 5 سال پہلے وہ یہ کل کتنے کیس ہوئے؟ 3 کیس۔ کہ جی یہ بار بار کرتا ہے، بار بار کا کیا مطلب ہے؟ اب سب سے پہلی بات، کیا 3 بار 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 نہیں ہوتا، یا اس کے لیے 3 بار 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 نہیں، یا 3 بار کرنا کوئی معنی نہیں، یا گستاخی نہیں ہوتی اگر 3 بار کریں، جبکہ یہ 3 بہت ہی کم تعداد ہے۔ ہم آپ کو اس کی درجنوں گستاخیاں دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس کی 3 بار والی بات کو بھی ہم مان لیں تو پھر بھی اب والی گستاخی ملا کے 4 بنتی ہیں، جو اس نے اپنے منہ سے خود گنوائی ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک مختصر نہیں، یہ کمینہ شخص حضرت امیر معاویہ کا بھی گستاخ ہے۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نو معاویہ۔ یہ فقیر کا مشن ہے، یہ فقیر کی سوچ ہے، جہنم میں جو لگاتا ہے فتوے۔ میں ان 2 نمبر فتووں سے ڈرتا نہیں۔ اور مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو
वाले वो कोई भी हो, वो क्या था? खता पे था, गलती पे था, खता पे था, गलती पे था, गलती पे था। जनाब मुआविया ने गलत किया, उनकी ये गलती है। जनाब मुआविया ने गलत किया, उनकी ये गलती है। आजकल पोस्टें चल रही हैं बहुत सारी, और मेरे मौला अली के साथ एक साहबी है, उनका नाम लग के कहा जाता है फलां और फलां अली, और वो भाई भाई। ये आले सुन्नत का मिजाज नहीं है, ये खारजियों और नास्तियों का तरीका है, ये खारजियों और नास्तियों का तरीका है। सिर्फ इतना कहने पे कि अली पहले नंबर पे है, ऐसे कहने वाले को राफसी कह दिया गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अली दा पहला नंबर। आजकल लोग अपनी औलादियां दे पुट्ठे सीधे नाम रखने शुरू कर देते। वो जहदियत के दौर में अगर कोई नाम रखते थे, चाहे वो कितने ही बड़े बंदे का नाम क्यों ना हो, जहदियत के नामों को यहाँ अप्लाई मत करो। वो एक माने हजरत, एक ना है, उसका माना बनता है भौंकता कुत्ता। तो बड़े फख्र ना रखते हैं, मैं आखे वाह इसम व मुसम्मा नजर आते हैं हजरत। इसी तरह माज़ अल्लाह इसने हज़रत अबू सुफियान को पलीद कहा। अपने तो अपने ओ अबू सुफियान जैसा पलीद, अपने तो अपने ओ अबू सुफियान जैसा पलीद। तो कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक पलीद होता है। आपने उनको पलीद कहा कि आपने उनको पलीद कहा तो बात होती है, क्यों करें? कौन करें? लड़ाई करो तो ये रोजा रखा वहां वो लोग करते हैं जिनके पास दलाइल नहीं होते। ये कह सकते हैं कि फारूक आजम जब कलमा नहीं पढ़ा था तो वो पलीद थे? नहीं कह सकते। इसी के साथ इसने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में शदीद गुस्ताखी की। हजरत आयशा पर जब वो आपके कुत्ते जब वो भौंके, वो जब वो जा रही थी, तो आपने फरमाया मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। उन्होंने फरमाया था आयशा वो कैसा दिन होगा जिस दिन वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। ये हदीस सही है, वो आपके कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे। तू याद रखना जब तू आपके कुत्ते तुझ पे भौंके तो यकीन कर लेना अली हक पे होगा। कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते तुझ पर भौंकेंगे, ये कुत्ते तुझ। नाज़रीन बात अभी तक यहाँ रुकती नहीं, अगली वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बदबख्त शख्स हज़रत हिंदा रदियल्लाहु ताला अन्हा को माअज़ल्लाह फाहिशा कहता है। नाजरीन अभी भी ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। अब आप भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं कि ये शख्स अपने मुंह से खुद इकरार करता है कि मैं ये सब जानबूझकर करता हूँ, ना कि मुझसे सबकती लिसानी से होता है। और मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलता है। और मैं जानबूझ के करता हूँ, तुम क्या समझते हो मेरे मुंह से वैसे निकलता है। मैं ये खुल के कहता हूँ, बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें मैं जवाब दे देता हूँ। अली और जनाब मुआविया की जंग हुई, हम अली के हक में थे, मुआविया के खिलाफ। हमें नो डिमांड मुआविया नहीं, अली मुआविया नहीं। घबराएं क्यों, शर्माएं क्यों, धमके की चोट पे क्यों न कहें नो मुआविया। ये फकीर की सोच है जो जहन्नुम में जो लगाता है फतवे। मैं इन 2 नंबर फतवों से डरता नहीं हूँ, धमके की चोट पे कहता हूँ। नाजरीन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। इस बदबख्त शख्स ने अफजलियत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मशकूक बनाने की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा के मुहाफ़िज़ खुद को कहने वाले और क़िबला कंजुल उलमा को नीचा करने वाले खुद हज़रत बीबी फ़ातिमा की गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं।
कुछ मामला थे, नहीं नहीं, ये तो देखना कोई दीनी वाले से तो नहीं था ना, ये तो जाती वाले से इतना हो जाता है, इस पे तो फतवा नहीं लगता ना। हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हमने कहा उधर भी सैयदा को गलत फहमी हुई थी, हदीस सुनी नहीं थी, तब थोड़ा सा गुस्सा गया था कि मुझे ये जवाब क्यों दिया गया। लेकिन जब बात उनके लिए जाहिर हो गई कि सारे सहाबा गवाही दे रहे कि हुजूर ने ऐसे फरमाया है, तो सैयदा राजी हो गई थी। क्या इन सब चीज़ों के बावजूद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स रुजू के काबिल या माफ़ी के काबिल है? और नाज़रीन, बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती। आप देख सकते हैं कि इसकी रवाफ़िज़ के साथ कितनी ज़्यादा यारी है। ये मुकम्मल राफ़िज़ी टोले के साथ जुड़ा हुआ है। इरफान शाह हो या बाकी फितने हों, ये उनके साथ बिल्कुल यकजान है और इस वक्त मुकम्मल ये रवाफ़िज़ शियों और तफ़ज़ीलियों का प्रचार कर रहा है। और इसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ख़ुद राफ़िज़ी अपनी ज़ुबान से ये इकरार कर रहे हैं और इसको शाबाश कहाँ से मिल रही है, ये आप देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब तक ये नासबियों के अंदर थे, अब जब उन्होंने सैयदा के तरफ में ये बात कही कि ये तुमने गलत बात कही है फातिमा ज़हरा के बारे में, वो खारजी हो गए, वो राफ़िज़ी हो गए, वो खटमल हो गए, छुपा हुआ राफ़िज़ी हो गए। वजह क्या थी ये कहने की? वजह यही थी कि उन्होंने सैयदा फातिमा ज़हरा के हक में बात की। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि इसमें सैयदा का हक बनता था नहीं बनता था, ये कोई डिस्कस उन्होंने नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये जो जुमला तुमने कहा है वो गलत कहा है, इससे तुम रुजू करो, इससे तुम तौबा करो, छोटे बाप के नहीं हो जाओगे, तौबा कर लोगे, अहले बैत की बारगाह में मकाम बड़ा हो जाएगा तुम्हारा। यही कहना था। जितने भी उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने उन्हें एक छोटी सी सलाह दी, जिसने ये सलाह दी कि अपनी इस बात से तुम रुजू करो, वो सब राफ़िज़ी हो गए, सब खटमल हो गए। वजह ये थी कि उन्होंने सैयदा के हक में ज़रा सी बात कह दी। किबला जलाली साहब ने तो अकीदा अहले सुन्नत पर पहरा दिया, आपने तो फ़कत ख़ताए इज्तिहादी का कौल किया। और ख़ताए इज्तिहादी कोई मासियत, गुनाह या बुराई नहीं, बल्कि अजर व सवाब है फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। ख़ुद ये अम्बिया से भी साबित है, तो किस तरह ये किसी गैर नबी के लिए गुस्ताखी हो जाए? अजीब तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। अब आप बताएं, ये सब देखने के बावजूद क्या आप अब भी इस बदबख्त की हिमायत करेंगे या अभी भी ये यही कहेगा कि इतनी गुस्ताखियाँ कब की मैंने, सिर्फ 3 ही तो की, और अगर ये बार बार नहीं तो फिर क्या है? और अहले सुन्नत का जो अक़ीदा मासूमियत के लिहाज से जो अकायद हैं उस पर भी ये इनहराफ करता है और राफ़िज़ियों का ये अक़ीदा अपनाता है। ये एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। लिहाजा ऐसे शख्स की रुजू किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। बददयानत इंसान है, ये बदनीयत और झूठा और मकार इंसान है, और अहले सुन्नत को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर FIR दर्ज हो चुकी है। यही वो शख्स है जिसकी हकीकत ये है कि गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 2011 के मौका पर जब गाज़ी साहब ने सलमान तसीर को वासिल जहन्नम किया, उस वक्त इस शख्स ने गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी से बिल्कुल ला ताल्लुकी का ऐलान किया और थाना में पेपर जमा करवाए और उसका अलल ऐलान इसने अपने दस्तखत किए। सारा ये आपके सामने पढ़ सकते हैं। इसने अपने हाथों लिखा कि मेरा मुमताज़ हुसैन कादरी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं इसको नहीं जानता, वगैरह वगैरह। ये इस कदर डरपोक इंसान है। और ऐसे वक्त में किबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम ने 2011 4 जनवरी के बाद गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी का काफ़िला कारवान ये लेकर चले, जिसका समर आज भी कौम देखती है। और ये उस काते राफ़िज़ियत पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं, और कभी किसी उलमाए हक़ के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडे करते हैं। और अभी हाल ही में इसने दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ जो जहर उगला वो किसी से ढका छुपा नहीं है और इसकी कोई भी माफ़ी नहीं दी जा सकती। और मैं आज बिल्कुल सरेआम आपके सामने एक बात कर रहा हूं। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी कुताई हो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मजहबी लीडर
अल्लाह के नबी की नामूस से भी आगे बढ़ गया। इस शख्स ने किबला अमीर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ बकवासात की। एक वक्त था जब ये अमीर अहले सुन्नत के गुण गाता था और उनकी तारीफ़ करना अपने लिए शरफ समझता था, और आज जब इसको थोड़ी शोहरत क्या मिली वो भी इससे संभाली ना गई, ये मालिकों को ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया। मैं इतना समझता हूँ उस शख्स को मैं सलाम मोहब्बत और अकीदत क्यों न करूँ। आज हम लगे रहे तो अपने पुत्र के सर पे टोपी नहीं रखवा सकते, अपनी जनानी और बीवी को नमाजी नहीं बना सकते। मैं उस इलियास कादरी को सलाम क्यों न करूं कि जिस शख्स की करामत है कि लाखों बिगड़े तिगड़ों को सर पे इमामा से जाकर हाथ में तस्बीह पकड़ा के नाज़रीन, ऐसे शख्स को जूते मारने चाहिए। मैं अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करता हूँ इसको अहले सुन्नत की स्टेजों पर हरगिज़ ना आने दिया जाए, बल्कि जहाँ इसका सुन्नी सहीउल अकीदा महफिलों इस तरह के स्टेजों पर अगर ये नज़र आए तो इसका ताक़ुब किया जाए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। फिर हाज़िर होंगे कोई अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।